ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Karnataka Sangha and Kalabharati, I welcome you all for a wonderful event dedicated to the memory of Shiva Shruti, specifically the late Pandit Shivakumar Shukla. And Bhendi Bazaar Gharana, about which we will all come to know, is one of the very close gharanas to me personally, and I have had in the last 18 years. Anyway, this is one gharana which we all owe, because they are the first gharana who made Hindustani classical music, Ragadari, most popular. The credit goes to Bhendi Bazaar Gharana, not because majority of the Master Navaranga or anybody were followers of this Gharana, but very easy to understand and easy to sing. That was the basic principle of Hindustani, and make it more entertaining and lilting. That quality, later on many people changed that, for example, Mewati. Mewati is nothing else but Bhendi Bazaar. Indore Gharana, it is nothing else but our Bhendi Bazaar Gharana, because there is slight variation and you form a new Gharana. I don't find any difference between either Indore Gharana or Mewati Gharana. Basically, it is nothing else but Bhendi Bazaar Gharana. So with this introduction, I hand over the mic to our Pankaj Bhai, who has come all the way from Baroda, specifically Palanpur, and Pankaj Raj. So I hand it over the mic to him, and I wish you all a very good listening pleasure. Thank you. We have with us Pandit Ishwar Chandra and his group Shiva Shruti from Baroda. I would like to invite all the guests, especially chief guest Shri Ajit Machan Sahab, Shri P.G. Burde Sahab, Pujya Swami Shri Premanand Saraswati Ji, and Shri Shrikant Lagu Sir, all on the dais for welcoming and the Pragatya. I would request Hitesh Bhai to escort all the guests. I request Pandit Ishwar Chandra to welcome Shri Ajit Machan Sahab with bouquet. Again, I will request Pandit Ishwar Chandra to welcome Shri P.G. Burde Sahab with bouquet. Now I request our chief guest Shri Ajit Machan Sahab to share his experience with us for a few words, sir. Please. नमस्कार सबको. इस प्रसंग पर मुझे चीफ गेस्ट बनाया, मगर सच बात तो ये है कि ये कार्यक्रम और कहीं भी होता है, कितना भी लंबा, क्योंकि शिव कुमार जी मेरे मित्र तो थे, मगर मेरे मानस गुरु भी थे. मानस गुरु इस 45, 46 और 47 तक मैं जब कागज में रहता था, तब मेरे साथ रहे वो 3 साल. और मानस गुरु इसलिए कहते कि कभी मैंने उनके साथ हारमोनियम पे संगीत बहुत की, उनके हर एक प्रोग्राम में 3 साल तक. मगर मानस गुरु इसलिए कहता हूँ कि मैं कभी पूछूं कि शिव कुमार जी ये राग कैसे जाएगा, क्या है, बोलते तुम सुनो और तुम ही यू ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें क्या खूबी है क्या नहीं.
इसका वादी संवादी से कोई वो नहीं। तुम राग कैसा गाया जाता है वो पहले सीखो। इन शॉर्ट, मैंने कभी संगीत का व्यवसाय अभी शुरू नहीं किया था, तो मुझे एस्थेटिक वैल्यू जो भिंडी बाजार कराने की खास खूबी है, सौंदर्य दृष्टि, वो उन्होंने मुझे 3 साल तक सिखाते रहे। और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे, और मेरे घर पे जब भी थे, कभी इनका कोई रियाज का टाइम फिक्स नहीं, कुछ नहीं, जब भी मर्जी में आए तभी वो शुरू करते थे। मगर उनको मिलने के लिए चिदानंद नगर कर, आमिर खान, ये सब हमारे कालकादेवी घर पे आते थे और घंटों तक बैठे रहते थे। रविशंकर जी का सितारिस्ट, वर्ल्ड फेमस, उनकी एक बात मैं सुनाता हूँ कि कॉनॉट प्लेस में दिल्ली में रविशंकर जी घूम रहे थे और शिव कुमार तो वैसे ही किसी के साथ गए थे जो रविशंकर जी को जानते थे, तो इंट्रोड्यूस करवाया। रविशंकर जी ने कहा कि आज रात को मेरे वहाँ दिल्ली के घर में आप आइए। वहाँ गए शिव कुमार जी और गाया। उसके बाद उन्होंने एक लेटर जो लिखा है वो है मेरे पास। उसमें लिखा है कि हंसर ध्वनि इस तरह गाया, इस तरह यानी गाया भी जाता है या ये मुझे पता ही नहीं था। यानी ये जो खूबी थी ना, ये उन्होंने कबूल की। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस फंक्शन में बुलाया गया। थैंक यू। थैंक यू। मैं श्री बुर्डे साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। मैंने पहले ही भिंडी बाजार का और हमारा रिलेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन ये कला भारती का जो आपने मुझे सम्मान किया है, लेकिन मैं इसका लायक नहीं हूँ। एक ही बात, घर की ये है, ये घर मेरा है, एक कला भारती संस्था हमारी है, और एक इसके दरवाजे पंडित जी आपके लिए बड़ौदा और गुजरात के किसी भी कोने पे कुछ भी यानी लोकल यानी इसमें तो फोक म्यूजिक हो, जो गुजरात का फोक म्यूजिक इतना अच्छा और इतना बढ़िया है जो सुना ही नहीं, अपने मुंबई वाले को सुना ही नहीं मिलता है। वो रहने दीजिए या आर्ट म्यूजिक कीजिए, ये आपके लिए खुला है। कभी भी एवरी संडे मॉर्निंग हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, आपके लिए हमेशा ये दरवाजे खुले हैं। ये कर्नाटक सर की तरफ से मेरा ये विनम्र है, ये विनंती है, बस। थैंक यू।